सदाप्रभु परमेश्वर नाम धन्य हेउ। आम्भमानकर मुक्तिदाता क्रूसरे हत जीसु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମାନେ କ୍ରୁସରେ ଚଢ଼ା ହେଲା ପରେ ସେ କେତୋଟି ପଦ କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ସପ୍ତବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁସର ତୃତୀୟ ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ 25 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁସ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ମାତା, ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ କ୍ଲୋପାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଓ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଯୋହନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସେ ମରିୟମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମା ପାଇଁ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ତାହା ଏଠାରେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ, କ୍ରୁସରେ ଝୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମା ମରିୟମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯେତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିବ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ। ନିଜର ପୁଅଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ କିଛି ଲାଗିଗଲେ, କିଛି ଘା ହେଇଗଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ମାରିଲେ। ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେ ସହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମା ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିବେ। ସେହି ଦୁଃଖ, ସେହି ବେଦନା ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଶରୀରରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ମୋର ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମା ପାଇଁ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ତାହା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ମା ମରିୟମଙ୍କର ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଦୁଃଖ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ମୋର ପୁଅ କାହିଁକି ଏପରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି? ମୋର ପୁଅ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରିଥିଲା। ମୋର ପୁଅର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ସେ ତ ଭଲ ଲୋକ, ସେ କାହିଁକି ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା? ଏହିପରି ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ପାଇବାର ଅଛି କି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥିବ। ଲୁକ 2 ପର୍ବରେ ଯୋସେଫ ଓ ମରିୟମ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସିମିୟନ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 35 ପଦ ପଢ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶିଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ପତନ ଓ ଉତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହାଯିବ ଏପରି ଚିହ୍ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଖଡ୍ଗ ବିଦ୍ଧ କରିବ। ସିମିୟନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ। ହେଲେ ସେ ମରିୟମଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ, ତୁମ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଖଡ୍ଗ ବିଦ୍ଧ କରିବ। ପ୍ରାୟ 33 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର କଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ସଫଳ ହେଲା। ମରିୟମଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଖଡ୍ଗ ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ସେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଖଡ୍ଗ ବିଦ୍ଧ କରୁଛି। ମରିୟମ ସେହି ଭାବବାଣୀ ସ୍ମରଣ କରିଥିବେ। ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ମୋର ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିବେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ବୋଲି। ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ମରିୟମଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ।
जीशु जन्म न हेबा पर्यंत से कुमारी थिले। जीशु कुमारी मरियम ठारू जात हेले, किंतु माथ्यू प्रथम अध्याय 25 पदरे एपर लेखा है, किंतु से पुत्र प्रसव न करिबा पर्यंत तांको सहवास कले नहीं, आउ से पुत्रंक नाम जीशु देले। जोसेफंक विषय एठार लेखा है, जोसेफ दूतंकर आज्ञा अनुसार मरियमंक से ग्रहण कले, अपना भार्या स्वरूपे ग्रहण कले, किंतु से प्रथम जात जे जीशुंक प्रसव न करिबा पर्यंत तांकर सहवास कला नहीं। एका ही लेखा है, मरियम तांकर सारा जीवन कन्या नथिले। मार्क 6 पर्वरे जीशुंकर भाई मानकर नाम मध्य लेखा है। थरे जीशु तांकर निजर पैतृक नगर के गले, अपना शिष्य मानक सहित सेटाक गले। नाजरित नगर रे जेतेबेले से प्रवेश कले, विश्राम दिन रे सही समाज गृह रे शिक्षा देबाक लागिले। समस्ते तांकर शिक्षा सुनिले और आश्चर्य हेले। 3 पदरे एपरि लेखा है, ए कि सही बड़ई नुहे, ए कि मरियमर पुओ, आउ जाकुब, जोसी, जिहुदा और सिमोनर भाई नुहे, पुणी एहार भौणी माने कि एठारे आंभमानक सांगरे नहांती, आउ सेमाने ताहांक ठारे विघ्न पाइले। एही पदरे मरियमंकर अन्य पुओ मानकर नाम मध्य लेखा है। एथिर आमे जानिबाक पाउछु जे जीशु मरियमंकर एकमात्र संतान नुहंती। मोर तो आउ भाई माने अछंती, से माने देखिबे मोर मांकर जत्न करिबे बोली जीशु चुपचाप रहिले नहीं। जीशु एठारे कहउचंती, गो नारी देख तुमर पुत्र। अपना शिष्यंक कहिले, देख तुमर माता। जीशु तांकर शेष अवस्था रे अपना माँ पाई जहा करिवार थिला ताहा से करूछंती। पिता मातांकर समादर कर बोली प्रभुंकर व्यवस्था कहूची, ताहा जीशु एठारे पालन करूछंती। माथ्यू 12 अध्याय रे जीशु जेतेबेले शिक्षा देउथिले, कथा हेउथिबा समय रे जने जीशुंकु कहिला, देखंतु आपणकर माँ और भाई माने बाहरे ठिया होइछंती, आपणक सहित कथा हेबाक से माने इच्छा करूछंती बोले। हेले से समय रे जीशु एपरि कहिले पढ़िबा, किंतु जे ताहांक एही कथा कहिला ताहाकु जीशु उत्तर देले, मोहर माँ किए आउ मोहर भाई माने किए। पुणी जीशु अपना शिष्य मानक आड़क हाथ बढ़ाई कहिले, देख मोहर माँ और मोहर भाई माने। कारण जे केही मोहर स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करे, से मोहर भाई भौणी और माँ। जीशुंकर माँ और भाई माने तांक भेटिबा पाई आसीथिले, हेले जीशु एठारे कहउचंती, जे केही मोर पितांक इच्छा साधन करे, से मोर भाई भौणी और माँ। हेले जीशु कहीं एपरि कहउचंती, से माने जीशुंक सहित रक्त संपर्कीय भावरे चिन्हित हेबाक चाहिए। मोर पुओ मोर भाई बोली एही जगतर जो रक्त संपर्क अछि, सेही अनुसार जीशुंक चिन्हित हेबाक चाहिए। किंतु जीशु कहिले, जे केही मोर पितांक इच्छा साधन करे, से मोर भाई, से मोर भौणी, मोर माँ हेबे। माने तार अर्थ कौन, मु केवल एही परिवार सहित रक्त संपर्क नहीं, मोर एही रक्त मो सारा जगत पाई मु देबाक चाहूँची। सेतिपाई जे केही मोर पितांक इच्छा साधन करिवे, से माने समस्ते मोर संपर्कीय लोक। जे माने सदा प्रभु परमेश्वरंकर इच्छा साधन करंती, से माने समस्ते जीशुंक सहित गोटे संपर्क रे आमे आसीछु। से आम मानकर भाई अछंती। जीशु केवल सेमानक सहित परिचित हेबाक चाहिए नहीं, जीशु आंभ मानक सहित मध्य से परिचित होइछंती। आज आपणक सहित और मो सहित जीशु ख्रीष्ट परिचित होइछंती। कारण आंभ माने पिता ईश्वरंकर इच्छा साधन करिबा लोक। तांकर इच्छा अनुसार आंभ माने जीशु ख्रीष्टंक आज विश्वास करूछु। सेतिपाई आंभ मानकर परिचय जीशु ख्रीष्टंक सहित अछि। जीशु एपरि कथा कहूथिले मध्य शेष समय रे आपणा मांक पाई जहा करिवार थिला ताहा ठीक भाबरे करूछंती। जोसेफंक विषय रे लेखा है नै, कारण से अनेक वर्ष पूर्वे मरी जाइथिबे बोली कहउछंती। केवल मरियम थिले, सेतिपाई जीशु तांकर एही बड़ दायित्व पूर्ण करूछंती। मांकर जतन करिवार तांकर दायित्व थिला, सेही दायित्व आपणा शिष्यंक से देइछंती। जीशु मरियमंक माँ बोली डाक नाहंती, गो नारी देख तुमर पुत्र बोली कहउछंती। हेले केते लोक माने कोन भाबुछंती, से माँ बोली डाक नांती, से सम्मान करनांती बोली।
हेले जीसु कहीं एपरि कहउछंती आदि पुस्तक 3 अध्याय पाप कला परे मनुष्य पापरे पतित हैला परे सदाप्रभु परमेश्वर अभिशाप देले सापक से एपरि कहिले 3:15 पदरे आंबे तुम्बर और नारीर मध्यरे पुणी तुम्ब वंश और तांक वंश मध्यरे बैर भाव जन्माइबा से तुम्भर मस्तक को आघात करिबे और तुम्बे ताहांक गोइठी की आघात करिबो। एबे कल्वरी क्रूसरे सेही बाणी सफल हेउछि। आदि पुस्तक 3:15 पिता परमेश्वर जहाँ कहिथिले सेही बाणी एबे से सफल करुचंती। शत्रु शैतान जीशु ख्रीष्टंकर कोइठी की आघात करबाक जाउछि। कोइठी माने आम मानकर चालिबाटा आम मानकर जीवन एही पृथ्वी रे जीशुकर जीवन को से समाप्त करबाक जाउछि किंतु जीशु ताहार मस्तक को आघात करिवे। कल्वरी क्रूसरे एहा ही घटितिला। एठारे सदाप्रभु कहिले तुम्ब वंश और नारीर वंश मध्यरे बैर भाव जन्माइबा माने जीशुक नारीर वंश बोली कुहा जायछि माने सीड ऑफ वुमन बोली कुहा जायछि। एठारे जीशु ठीक सही पद व्यवहार करुचंती गो नारी देख तुमर पुत्र। जीशु नारीर वंश होई एई जगत रे आसीचंती सेतिपाई आमे से माँ बोली डाकी नांती से आदर करनांती बोली आमे सेमिति भाबिबा नाही। सेठारे जेउ पद व्यवहार करा जायथिला ठीक सही पद जीशु व्यवहार करुचंती। जीशु क्रूसरु देखुचंती अनेक माँ माने अचंती अनेक स्त्री माने थिले किंतु जीशुंकर शिष्य केवल जणे थिले केवल जहन सेठारे थिले आउ बाकी समस्ते पळै गले जीशु को छाड़िले। प्राय 3.5 वर्ष जीशुंक सहित गमन करुथिले सबुआडे जाउथिले जीशुंक सहित रहुथिले। एबे क्रूसरे हत हेबा समय रे समस्ते जीशुंक छाड़िले पळै गले केवल जणे जहन जीशुंक पाखरे ठिया होइथिले। तांक विषय रे बारंबार एपर लेखाइछि जहन निजे एपर लेखुचंती जीशु जेउ शिष्यंक प्रेम करथिले बोली से निज विषय रे लेखुचंती। जीशुंकर अनेक शिष्य माने थिले से 70 जनक बाचिले और सेही 70 लोक मानक जीशु अनेक ग्राम गुडी को पठाइले आउ 12 शिष्य माने सबेले जीशुंक संगरे थिले। सेथि मध्यरु 3 जन जीशु जुआडे गले भी गले पितर जाकुब और जहन किंतु सेही 3 जन मध्यरे एबे जणे जहन एठारे रहुचंती क्रूस पाखरे ठिया होइचंती। शेष रात्रि भोज समय रे कि आपणक शत्रु हस्तरे समर्पण करिवो बोली समस्ते पचारंती। से समय रे एही जहन जीशु ख्रीष्टंकर बक्य स्थल रे आउजी पड़ी तांक पचारले। से एते जीशुंक सहित बहुत क्लोज रे थिले से एबे क्रूस पाखरे ठिया होइचंती कारण प्रेम। समस्ते डोरी गले आम मानक मध्य धरिबे पितर तो 3 थर अस्वीकार करिले पळे गले आउ बाकी समस्ते मध्य पळे जाइचंती केवल एही जगन क्रूस पाखरे ठिया होइतिले। सेतिपाई जीशु तांक एही बड़ दायित्व दैचंती। मरियमक से निजर माँ करी ग्रहण कले। एही विषय को आमे जानिबार अछि जे जदि आमे ईश्वरक प्रेम को भल करी जानिबा बुझिबा आउ आमे मध्य जदि आमे तांक प्रेम करिबा हेले तांकर रब आमे सुनी हेबो। जेतेबेले सदाप्रभु गुटे कथा कहिबे ताहा आमे पाई हेबो। एठारे जीशु देखुचंती केवल जहन थिले जहन से रब सुनिले। जीशु ख्रीष्टंकर इच्छा कौन बोली से जानी पारिले से ताहा साधन कले। मरियमकर जत्न करिबा द्वारा तांको ग्रहण करिबा द्वारा ईश्वरंकर इच्छा से साधन करि पारले। आज आमे अनेक समय रे प्रभु को निकटक जाउछु हमर जीवन पाई जहाँ दरकार से सब मागुछु आउ तापरे पळे आसुछु हेले आमे तांकर उपस्थिति रे बहुत समय रहिले तांकर प्रेम को आमे जदि अनुभव करिबा हेले तांकर स्वर आमे सुनी हेबो। मो जीवनर उद्देश्य कौन जीशु मो पाई मु कौन करिबा पाई से चाहंती ताहा आमे जानी हेबो आउ तार अनुसार आमे करिहेबो। एठारे एही तृतीय बाणी द्वारा आज आमे एही विषय शिखिबा निजर बापा मांकर जत्न करिबा। सेमानकर बुढ़ा अवस्था रे आमे अवहेला करिबा नाही सेमानकर समादर करिबा आदर करिबा। आजिकाली अनेक पुओ झियो माने विश्वासी माने मध्य
बापा माँकर जत्न करिवारे टिके अवहेला होइछन्ति। मोर भाई अछि भौणी अछि से देखिबो बोली कहउछन्ति, हेले आमे जीशुंकर अनुसरण करिबा, जीशुंक ठारू आमे शिखिबा। आउ जहणक परी एही परिस्थिति जहा हेले भी सदा प्रभुंकर अनुगमन करिबा। भल थिले मो तांकर अनुगमन करिबी, टिके बाधा विघ्न आसिले मो पछगुचा हेबी बोली आमे जीशुंक ठारू दूर होइकि जीवा नाही। जे कोनसी परिस्थिति हेले भी तांकर निकटवर्ती हेबा, तांक पई मो तांकर शिष्य बोली सही स्थान रे ही आमे ठिया हेबा। हेले ईश्वरंकर रब आमे सुनी हेबो, प्रभु आमनक आशीर्वाद करिबे। आसंतु प्रार्थना करिबा। हे आममानकर दयालु पिता परमेश्वर, तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद देउछि बापा। आम्भमानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु कृष्णक नामरे तुम निकटक आमे आसिछु। प्रभु तुमर यही वाक्य द्वारा आम्भमानक सहित तुमे कथा कहिवछ, सेतिपई तुमको धन्यवाद देउछि बापा। जीशु ए जगतर त्राणकर्ता हेले मध्य प्रभु निजर मांक पई जहा करिवार अछि ताहा करथिले। प्रभु आममानके यही विषय आज शिखाइछन्ति, सेतिपई तुमको धन्यवाद देउछि बापा। प्रभु जे माने यही वाक्य सुनिछन्ति ओम सहित प्रार्थना करछन्ति, प्रत्येकंको तुमे आशीर्वाद कर। प्रभु यही जीवन रे तुमे आममानके अनेक प्रकार दायित्व देइछ। प्रभु आममानकर कर्तव्य सब आम माने जेपरि ठीक भावरे करि पारिबु। प्रभु सेतिपई आममानको तुमे दया कर। तुमे आम्भमानक पई एक मॉडल हेइछ प्रभु। आम्भमानक जीवन रे आमे जेपरि प्रभु पिता मातांकर समान आदर करि पारिबु, सेमानकर समादर करि प्रभु शेष पर्यंत सेमानकर जत्न नै पारिबु। सेतिपई आममानक तुमे दया कर। प्रभु तुमे ही आशीर्वाद कर। प्रभु तुमे आममानक बहुत प्रेम करूअछ। प्रभु सही प्रेम को जहन ठीक भावरे बुझिले प्रभु जीशु जो शिष्य को बहुत प्रेम करथिले सही लोक बोली प्रभु से निजक कहउछन्ति। प्रभु आम्भमाने मध्य कहउछु बापा, तुम ठार प्रभु आमे बहुत स्नेह पाइछु। प्रभु तुमरे अद्वितीय पुत्रंक देई प्रभु आममानक तुमे स्नेह करूअछ, प्रेम करूअछ। सही तुमरे प्रेम को आम्भमाने जेपरि जानिबु आ तुमर निकटतरे रही पारिबु, सेतिपई आममानक तुमे दया कर। प्रभु एही जगत रे प्रभु जेते बाधा विघ्न आसिले भी निंदा पाइले मध्य प्रभु ए जगतर लोक मानक आमे जेपरि न डरी प्रभु तुम ठारे आमे लागी रही पारिबु, सेतिपई आममानक तुमे दया कर। अनेक समय रे प्रभु अन्य मानक संतुष्ट करिबा पई प्रभु आमे तुम ठारे टिके दूर को पळै जाउछि। जीशुंकर शिष्य बोले आमे कहिबा के आमे भल पाउ नै प्रभु, एही विषय ठार आममानक तुमे रक्षा कर। आमे जेपरि प्रभु प्रत्येक परिस्थिति रे तुमर पिला तुमर संतान प्रभु जीशुंकर शिष्य बोली आमे समस्तक साक्षात रे प्रभु आमे साक्ष्य देई पारिबु, सेतिपई आममानक तुमे दया कर। प्रभु जे माने रोगग्रस्त होइछन्ति, पीड़ित अवस्था रे अछन्ति, प्रत्येकंको तुमे आशीर्वाद कर। प्रभु आममानकर रोग कष्ट जंत्रणा सब तुमे कलवरी क्रूस रे बही नैछ। प्रभु तुमर कलवरी को आमे जेतेबेले देखु प्रभु आममानकर रोग सब तुम ठारे अछि। प्रभु तुमर प्रहार रे आमे सुस्थ हेलु बोली तुमरी वाक्य कहूअछि। सही वाक्य अनुसार प्रभु समस्तंको तुमे सुस्थ कर। जीशुंका नाम रे समस्ते सुस्थ हुअन्ते। प्रभु जे बापा माँ माने प्रभु मोर पुओ मोर केयर करू नै, मोर झियो मते देखु नै बोली जे माने चिंतित हुअन्ति, सेमानक पई मु विशेष करी आज प्रार्थना करछु। प्रभु सही माँ बापांकर जीवन रे प्रभु तुमे सहाय्य कर, तुमे आशीर्वाद कर। सेमानकर जीवन रे जेपरि प्रभु पुओ झियो मानकर प्रेम से माने पाई पारिबे, बुढ़ा अवस्था रे प्रभु से माने जेपरि कुशल रे रही पारिबे, सेतिपई सेमानक तुमे दया कर। प्रभु तुमे ही आशीर्वाद कर। प्रभु आमर जीवन द्वारा तुमे महिमा पाव, गौरव पाव। एही प्रार्थना नाजरीय जीशु कृष्णक नाम रे मागिली, आमेन। जदि आपण एही वार्ता द्वारा आशीर्वाद पाइछन्ति तेबे आपणकर बंधु एवं संपर्कीय मानक सहित यह शेयर करंतु।